लाइन किसी भी पॉपुलेशन की डिजीज़ का एक्सटेंड स्टडी करते हैं, इंडेक्स के थ्रू हम उसका डिजीज़ एक्सटेंड ले लेते हैं, सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़ देख लेते हैं कौन सी डिजीज़ कॉमन है किसी कम्युनिटी में। उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं, हम उसमें ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस इंक्लूड कराएंगे या हम जो भी एजेंट यूज़ कराएंगे, कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराएंगे। आफ्टर दैट विल स्टडी कि उस मेडिसिन का या उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है population पे. So it is also used in epidemiological survey. It has three main functions: on individual level for a clinical trial or on a community health epidemiological survey. Now the categories of an index. There are two main categories of index: simple index and cumulative index. Simple index is the one that measures the presence or absence of the condition. For example, index that measures the presence of bacterial plaque without evaluating its effects on gingiva. सिंपल इंडेक्स से आप ये देख लें कि ये मेजर करता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़, ये और कुछ मेजर नहीं करेगा, ये सिर्फ देखेगा कि प्रेजेंस और एब्सेंस कितनी है कितनी नहीं है और जिंजिवा पे इसका क्या इफ़ेक्ट है। Cumulative index क्या होता है? It measures all the evidence of a condition, past and present. For example, DMF index for dental caries. Cumulative index से past भी हमें पता चल जाता है और हमें present भी पता चल जाता है. For example, decayed, missing and filled teeth, इससे हम assess कर लेते हैं कि कितने decayed teeth हैं, कितने missing teeth हैं जो past में निकाल दिए गए हैं because of some problem, कितने फिल टीथ हैं, पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी जो उनको फिल कर दिया गया। सो दीज आर द टू मेन कैटेगरीज, सिंपल इंडेक्स and cumulative index. These are further divided into irreversible, reversible and composite. Reversible index is the one which measures the conditions that can be changed, for example, plaque indexed. रिवर्सिबल बाय नेम यू कैन ऑल जज कि ये रिवर्स हो सकता है। जिस तरह प्लैक इंडेक्स होता है, वील प्रैक्टिस प्रॉपर ओरल हाइजीन मेयर्स, वील टेक प्रॉपर ओरल हाइजीन मेयर्स, तो प्लैक रिमूव हो जाता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द रिवर्सिबल कंडीशंस, whereas irreversible index measures the conditions that will not change. For instance, DMF, जो टूथ डिके हो गया, जो मिसिंग है, जो फिल्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। So it is for irreversible conditions. Reversible is for reversible conditions. Composite index is the combination of reversible and irreversible aspect of disease. Example, Russell's periodontal index concerned with the clinical signs of active gingival inflammation and the destructiveness of the condition by pocket deepening and bone resorption. For example, कोई एक्टिव कंडीशन है जिसमें जिंजिवाइटिस भी है पेशेंट को और उसकी कुछ जगहों पे डिस्ट्रक्शन भी हुई हुई है, पॉकेट डीपनिंग हुई हुई है, बोन रिजॉर्प्शन हुई हुई है। पॉकेट डीपनिंग, बोन रिजॉर्प्शन इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन, वेयर एज जिंजिवाइटिस इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। ऐसी कंडीशन में हम कॉम्पोजिट इंडेक्स यूज कर सकते हैं। Now what should be the selection criteria? आप लोग ने आइडियल रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं, all of them come in the selection criteria. A useful and effective index will be simple to use and calculate, require minimal equipment and expense, require minimal amount of time to complete, not cause patients discomfort or otherwise be unacceptable to the patient, have a clear-cut criteria that are readily understandable, be as free as possible for subjective interpretation, be reproducible by the same examiner or different examiners, be amenable to statistical analysis, have validity and reliability. These are the 8 set criteria of an ideal index. It is a very important SEQ. I have already explained all of them in the ideal requirements. Simple होना चाहिए, minimal equipment use करना चाहिए, minimal टाइम यूज़ होना चाहिए, इसमें पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए,
कोई भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आप इसमें पॉसिबली नहीं होनी चाहिए कि आप डिफरेंट सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आप कोई और एक इंडेक्स जो है वो स्पेसिफिक एक डिजीज़ के लिए होना चाहिए, स्पेसिफिकली उसको मेजर करना चाहिए, उसमें कोई और वो नहीं आना चाहिए कि किसी और डिजीज़ को भी कर रहा और एक कंफ्यूजन सी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, इट मीन्स रिलायबल होना चाहिए. अगर डिफरेंट एग्जामिनर्स उसी इंडेक्स से कोई डिजीज़ मेजर कर रहे हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. Now the indices for oral diseases. This is the classification of indices of oral diseases. This is again a very important SCQ. Basically indices को हम oral diseases या oral hygiene problems की basis की पे हम classify करते हैं. So basically it has 12 main components, or you can say 12 main oral health issues. उनकी बेसिस में हमने इंडिसेस बनाए हुए हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल प्लेक के लिए जो इंडेक्स यूज होता है वो प्लेक इंडेक्स यूज होता है. प्लेक, डेब्रिस एंड कैलकुलस के लिए देयर इज पेशेंट हाइजीन परफॉर्मेंस इंडेक्स, oral hygiene index, simplified oral hygiene index. Then for gingival bleeding, sulcus is sulcus bleeding index. For gingival changes, gingivitis, there is gingival index. For periodontal diseases, there is periodontal index, periodontal disease index, community periodontal index of treatment needs, and community periodontal index. Then there is mobility index. Then there are indices for the dental caries. For example, for permanent teeth, we have decayed, missing, and filled teeth, decayed, missing, and filled surfaces, significant caries index. And for primary teeth, we have decayed and filled teeth, decayed and filled surfaces. For mixed dentition, we have decayed and filled teeth and decayed, missing, and filled teeth, decayed and filled surfaces, and decayed, missing, and filled surfaces. Small DFT means for primary dentition, and capital DMFT means for permanent dentition. Then for dental fluorosis, we have community fluorosis index and Dean's fluorosis index. Then the index for malocclusion, for dental aesthetic index, oral cancer index, and WHO oral health assessment form. These are the 12 main categories of oral indices for oral diseases. Now, first of all, we are going to study the plaque index. It was described by Silnes and Louis in 1964. The purpose of plaque index is to assess the thickness of plaque at the gingival area. Entire dentition or selected teeth can be evaluated. The areas examined are distal, facial, mesial, and lingual surfaces. It was described by Silnes and Louis. इसका purpose क्या है? To assess by its names you can see it is plaque index, to assess the thickness of plaque at the gingival area. आपने gingival area पे plaque की thickness assess करनी है. पूरी dentition भी हम consider कर सकते हैं, हम selected teeth भी evaluate कर सकते हैं. Surfaces कौन कौन सी examine करते हैं हम? Distal, facial, mesial and lingual surfaces. The teeth examined are maxillary right first molar, which is 1/6, maxillary right lateral incisor, maxillary left first bicuspid, means first premolar, mandibular left first molar, mandibular left lateral incisor, and mandibular right first bicuspid.
If any of the index teeth are missing, there is no substitute and a full mouth examination has to be done. इन 6 टीथ में से कोई भी अगर मिसिंग होगा तो हम इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते. फॉर एग्जांपल अगर 1/6 मिसिंग है तो हम 1/7 को एज अ इंडेक्स टीथ नहीं यूज कर सकते. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. एक टीथ मिसिंग होगा, वी विल इवैल्यूएट द कंप्लीट डेंटिशन. प्रोसीजर क्या होता है प्लैक इंडेक्स का? First of all, the teeth are dried and examined visually using light, mouth mirror and probe. आपने ड्राई किया टीथ को विजुअली लाइट में विद द हेल्प ऑफ माउथ मिरर एंड प्रोब. आपने देखा. Evaluate bacterial plaque on the cervical third, paying no attention to the plaque extending to the middle or incisal third. This was for the gingival or cervical third, the plaque present on the cervical and gingival third. So you have to give no attention to the plaque extending towards the middle or incisal third. Probe to test the surface when no plaque is visible. कुछ केसेस में प्लैक विजिबल होता है. आप लाइट देखते हो लाइट में तो टीथ पे प्लैक नजर आ रहा है. कुछ कंडीशन में विजिबल नहीं होता. उसमें फिर आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोब चेक करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है. Pass the probe explorer across the tooth surface in the cervical third and near the entrance to the circle. आप जो अपना प्रोब है वो टूथ के सर्वाइकल थर्ड पे मूव कराते हो उसको चेक करने के लिए कि फॉर एग्जांपल आप डिस्टल से मीजेल की तरफ आते हो. अपना प्रोब लाते हुए देखते हो कि उसमें कोई प्लैक डिपॉजिट्स हैं कि नहीं है. If there is no plaque or there is no plaque adheres to the probe tip, the area is scored as 0. But when plaque adheres, it scores at 1. A disclosing agent may be used to help the evaluation. So अभी तक आपको ये समझ आ गया कि आपने माउथ मिरर प्रोब लेना है. आपने जिंजाइवल जो उसका टूथ का जिंजाइवल थर्ड पार्ट है उसमें आपने अपना प्रोब डिस्टल से मीजियल की तरफ मूव करना है और आपने देखना है बाद में कि प्रोब के ऊपर कोई प्लैक एडहेयर है कि नहीं है. If there is no plaque, you have to score it as 0, and if there is plaque, you have to score it as 1. Now the criteria or the grading for the plaque index: 0 means there is no plaque. 1 means a film of plaque adhering to the free gingival margin and adjacent area of the tooth. The plaque becomes visible only when disclosing agent is used or by running the explorer across the tooth surface. 0 means कि वहाँ पे प्लैक प्रेजेंट ही नहीं है. आपने प्रोब से भी चेक कर लिया, आपने लाइट में भी देख लिया, आपने डिस्क्लोजिंग एजेंट से भी देख लिया. 1 मीन्स कि अपेरेंटली आपको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे प्लैक है कि नहीं है. आप डिस्क्लोजिंग एजेंट यूज़ करोगे या एक्सप्लोरर यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टूथ पे सर्वाइकल मार्जिन पे प्लैक प्रेजेंट है कि नहीं है. उसको हम 1 स्कोर करेंगे. 2 is the moderate accumulation of the soft deposits within the gingival pocket that can be seen with the naked eye or on the tooth and gingival margin. अब नंबर 2 आप ग्रेड कब करोगे? जब आपको सॉफ्ट डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं लाइट में, आपको प्रोबिंग और उसकी ज़रूरत नहीं है किसी भी डिस्क्लोजिंग एजेंट की. आपको नज़र आ रहे हैं सॉफ्ट डिपॉजिट्स, यू कैन सी इट. Number 3 means that the abundance of soft matter within the gingival pocket or the tooth and gingival margin. Abundance of plaque is present. 0 means no plaques. 1 means naked eye से नज़र नहीं आ रहा. आप लोगों ने disclosing agent यूज़ किया है, आप लोगों ने explorer यूज़ किया. उसामा, क्योंकि नॉर्मली एक्लूसिव सर्फेसेस पे प्लैक डिपॉजिट नहीं होता. आप देखो कि वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो वॉश आउट होता रहता है एक्लूसिव सर्फेसेस जो है. जो अगर ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस ना हो तो नॉर्मली इन सर्फेसेस पे प्लैक डिपॉजिट होता है. आप लोग अपना भी देखोगे
कि इन्हीं जगहों पे प्लैक डिपॉजिट होता है। ठीक है, सो देयर 0, 1, 2 and 3. 0 means no plaque, 1 means you cannot see it with your naked eye. आपको कोई disclosing agent या probe use करना पड़ता है. Second, there is moderate deposit, and third, 3 means that there is abundance of plaque. आप अब इसकी स्कोरिंग कैसे करते हो? आपने देख लिया कि एक टूथ जिसको आप एग्जामिन कर रहे हो उसको आप किस तरह एग्जामिन कर सकते हो, 0, 1, 2 and 3. अब इसकी स्कोरिंग हम कैसे करते हैं? पहले हम उसके एरिया की स्कोरिंग करते हैं. हम मीजियल, डिस्टल, फेशियल एंड लिंगुअल सर्फेसेस उसकी एग्जामिन कर रहे थे, जिसको हम 0 से 3 तक स्कोर करेंगे. फॉर एग्जांपल डिस्टल पे 1 है, मीजियल पे भी 1 है, फेशियल पे भी 1 है, लिंगुअल पे भी हमने 1 स्कोर किया. आपने इसको स्कोरिंग कर ली सब सर्फेसेस की एक टूथ की. फिर आप एक टूथ को कैसे करोगे? आप इन सबको टोटल करोगे. आपने सर्फेसेस को टोटल कर दिया. 4 सर्फेसेस थी, आपने उनको टोटल कर लिया. हमने 1 1 1 कंसिडर किया था, तो 1 + 1 + 1 + 1 मीन्स 4 स्कोर आ गया. तो सारे जो एरिया को हमने टोटल किया उसका स्कोर 4 आया. उसको हमने डिवाइड करना है 4 से. हमारा आंसर आएगा 1. पहले हमने, आप ये समझें इसको एक दफ़ा कि पहले हमने एरियाज़ को स्कोर करना है. डिस्टल, मीजियल, फेशियल एंड लिंगुअल सर्फेसेस हम एग्जामिन कर रहे थे. हमने सब में 1 1 1, फॉर एग्जांपल हमने 1 1 1 लिया. ये हमारे एरियाज़ को स्कोर आ गया. अब हमने एक टूथ कंप्लीट एक टूथ का स्कोर लेना है. वो हम कैसे निकालेंगे कि हम सारे एरियाज़ को प्लस करेंगे, टोटल करेंगे एंड विल डिवाइड इट बाय 4. तो वो एक टूथ का स्कोर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल इन दिस केस उस टूथ का स्कोर क्या आया? 1. 4 सर्फेसेस थी, उनको हमने डिवाइड किया बाय 4. अब हमने ग्रुप्स ऑफ टीथ का स्कोर निकालना है. एक टीथ का स्कोर, एक टूथ का स्कोर 1 आया था. हमने ग्रुप ऑफ टीथ का स्कोर निकालना है. हम कैसे निकालेंगे? Scores for individual teeth may be grouped and totaled and divided by the number of teeth. For example, plaque index may be determined for specific teeth or group of teeth. The right side may be compared with the left side. अब आपने ये करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 टीथ आप एग्जामिन कर रहे हो. आपने 6 टीथ एग्जामिन किए. हर टीथ का इंडिविजुअली स्कोर 1 ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 आया. तो सारे टीथ को जब हमने टोटल किया तो उसका स्कोर 6 आ गया. अब हमने 6 टीथ एग्जामिन किए थे. हर टीथ का स्कोर 1 था, जो प्लस करके 6 आया. तो वील डिवाइड 6 बाय 6. नंबर ऑफ टीथ जितने एग्जामिन किए उससे ही से डिवाइड करेंगे जो स्कोर हमारे पास आया सब टीथ का. तो व्हाट विल बी द आंसर? 1. अब एक इंडिविजुअल का आंसर क्या आया? 1. अब हमने इंडिविजुअल को add the scores for each tooth and divide by the number of teeth examined. The score ranges from 0 to 3. आप लोग ये अपने भी, मैंने आपको 1 की एग्जांपल दिया, आप 2 की एग्जांपल के साथ 3 की एग्जांपल के साथ भी करके देखो. आपका स्कोर फ्रॉम 0 to 3 ही आएगा. सॉरी. अब आप लोगों को समझ आ गया कि पहले हमने एरिया को स्कोर करना है. 4 एरियाज हैं. हमने इंडिविजुअली डिस्टल, मीजियल, फेशियल, लिंगुअल को स्कोर करना है. फिर उसके बाद हमने टूथ का स्कोर कैसे निकालना है कि हमने सब एरियाज के स्कोर को प्लस करके उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है. फिर हमने ग्रुप ऑफ टीथ का स्कोर कैसे निकालना है. हमने जो एक टीथ का या एक टूथ का स्कोर आया था और जितने टीथ हमने एग्जामिन किए थे, हमने उन सबको प्लस, सब टीथ के स्कोर्स को प्लस कर लेना है. उनको प्लस कर लिया, ये ग्रुप ऑफ टीथ का स्कोर आ गया. हमने इंडिविजुअल स्कोर कैसे निकालना है कि हमने जो ग्रुप ऑफ टीथ का स्कोर आया है हमने उसको डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टीथ एग्जामिन्ड.
जब आप एग्जामिन करोगे तो वो 0 से 3 के दरमियान आएगा। अब हमने 0 से 3 को हम कैसे रेटिंग करेंगे? अगर 0 आता है, it means the oral hygiene is excellent. If it is 0.1 to 0.9, it means good. If it is 1 to 1.9, it means it is fair. And if it is 2 to 3, it means the oral hygiene of the patient is poor. बहुत ज़्यादा प्लैक डिपॉजिट्स थे, इसको हम इस तरह मेजर करेंगे। एनी प्रॉब्लम इन प्लैक इंडेक्स? तो मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा देती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लग रही है उसमें। Okay. Now the next index is patient hygiene performance index. The purpose of this index is to assess the extent of plaque and debris over a tooth surface. Plaque index में हम क्या मेजर कर रहे थे? हम सिर्फ the extent of plaque मेजर कर रहे थे। इसमें हम will measure the extent of plaque as well as debris. Now what is debris? Debris is defined from the patient hygiene performance index as the foreign material consisting of bacterial plaque, Materia alba, and food debris that is loosely attached to the tooth surface. Bacterial plaque, you all know, it is a soft biofilm which adheres to the tooth. What is Materia alba? Materia alba होता है, it consists of bacteria as well as some tissue cells which are loosely attached to the tooth. हम जब प्लैक की बात करते हैं तो वो टूथ के साथ एडहेयर कर जाता है। अगर हम सिंपल वाटर स्प्रे करेंगे तो प्लैक नहीं उतरेगा। वेयरएज़ अगर हम मटीरियल एल्बा पे वाटर स्प्रे करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। इट इज लूजली अटैच्ड टू द टूथ। इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड टिश्यू सेल्स and food debris, as you all know. Debris consists of bacterial plaque, Materia alba, and food debris, which are loosely attached to the tooth surfaces. इसमें हम कौन कौन से टीथ सिलेक्ट करते हैं? The teeth examined are 1-6, which is maxillary right first molar, 1-1 maxillary central incisor, maxillary right central incisor, 2-6 maxillary left first molar, 3-6 mandibular left first molar, 3-1 mandibular left central incisor, and 4-6 mandibular right first molar. These are the 6 teeth examined. प्लैक इंडेक्स में हम सब्सटीट्यूट नहीं दे रहे। वहाँ पे अगर हमारा एक कोई भी टीथ जो एग्जामिन या एवेल्यूएट होता मिसिंग होता था तो हम पूरी डेंटिशन को मेजर करते थे। इसमें वी आर गिवन सब्सटीट्यूट्स। When the first molar is missing, second molar is used. Similarly, if the second molar is missing, third molar is used. If the central incisor is missing, the lateral is used. The adjacent central incisor is used for the missing incisor. Surfaces. Facial surfaces of incisors and maxillary molars and the lingual surfaces of the mandibular molars are examined. अब surfaces आप समझें कि facial surfaces of the incisors and maxillary molars, आपने facial surface maxillary molars की और upper and lower incisors की मेजर करनी है। buccal surface आप कह लें, ठीक है, और labial surface आपने incisors की और maxillary molars की मेजर करनी है। Whereas you have to measure the lingual surface of the mandibular molars. upper में labial surface और buccal surface, whereas in lower molars lingual surface. सिर्फ lower central incisor में आप labial surface measure कर रहे हैं। Now the procedure. Disclosing agent is applied
Each tooth surface to be evaluated is subdivided into 5 sections. जो surface आप examine कर रहे हैं आपने उसको 5 sections में divide करना है. Vertically it is divided into 3 sections: mesial, middle and distal. For example हम incisor की example ले लेते हैं. आप लोगों को नजर आ रहा है, पिक्चर नजर आ रही है, क्लियर है? हम इंसाइजर की एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें वी हैव डिवाइडेड द इंसाइजर इनटू 3 vertical groups: mesial, middle and distal. Now horizontally we have divided the middle one into 3 further groups: gingival, middle and occlusal और incisal third. ये incisor है तो इसमें incisal third होगा. हमने vertically 3 में divide कर दिया, हमने middle one को horizontally 3 में divide कर दिया. The subdivisions are scored for the presence of staying debris as follows: 0 for no debris and 1 for debris present. हम स्कोरिंग कैसे करते हैं? Scoring for an individual tooth, जैसे हमने पहले किया था. Scores for each of the 5 subdivisions are added. Then the score range from 0 to 5. अब हमने ये तो बता दिया कि हम मेजर कैसे करेंगे. जिसमें डेब्रिस प्रेजेंट है वो 1 होगा, जो जिसमें डेब्रिस प्रेजेंट नहीं है वो 0 होगा. इसका मतलब है मैक्सिमम जो एक सरफेस का स्कोर निकल सकता है एक सब डिवीजन का वो 1 निकल सकता है. एक टूथ की कितनी सब डिविजन हैं? 5. तो मैक्सिमम एक टूथ कहाँ तक स्कोर कर सकता है? 5 तक की. उसकी 5 सब डिविजन है. अगर सब की फॉर एग्जांपल 1 भी स्कोर आ रहा है तो वो मैक्सिमम 5 बनेगा. स्कोर फॉर द इंडिविजुअल, द टोटल स्कोर ऑफ फॉर द इंडिविजुअल टीथ divided by the number of teeth examined. The score is from 0 to 5. आपने जो नंबर ऑफ टीथ है आपने एड अप कर लिया 0. अब जो नंबर ऑफ टीथ है, फॉर एग्जांपल हम इस केस में 6 टीथ ले रहे थे. 6 टीथ ले रहे थे और 6 टीथ में हमने हर टीथ का देख लिया कि स्कोर क्या निकला है. मैक्सिमम 5 आ सकता था स्कोर. मैक्सिमम 5 स्कोर आ सकता था. हमने इंडिविजुअल टीथ को उसका स्कोर ले लिया. फॉर एग्जांपल 5 स्कोर था हर टीथ का. हम मैक्सिमम स्कोर ले लेते हैं. हमने उसको डिवाइड कर दिया 6 से, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ टीथ हमने एग्जामिन किए थे वो 6 थे. सो हम 5 पहले हम उसको टोटल करेंगे. 30 इसका टोटल निकलेगा. उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से. जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल स्कोर आ जाएगा. द टोटल इंडिविजुअल स्कोर्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एग्जामिन. अब इसमें इंडिविजुअल स्कोर क्या आएगा? हमारे पास इंडिविजुअल स्कोर मैक्सिमम 5 आ जाएगा. इस केस में हमने मैक्सिमम ले लिया. आप लोग मुझे बताओ अगर आपको कहीं पे ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो मैं एक बार दोबारा कैलकुलेट कर देती हूँ. यस, 30 डिवाइडेड बाय 6, तो मैक्सिमम हमारे पास 5 स्कोर आ गया. अच्छा, अब इसी तरह अगर हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल का स्कोर लेना है तो हम कैसे करेंगे? एक बंदे का स्कोर हमारे पास आ गया 5. इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो हम उनमें भी इसी तरह स्कोरिंग करके इंडिविजुअल स्कोर को प्लस करेंगे और जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उनसे डिवाइड कर देंगे. अब इसकी रेटिंग हम कैसे करते हैं? If the score is 0, it means the condition is excellent. There is no debris, no plaque. मैक्सिमम 5 हो सकता है. देखो मैक्सिमम 5 क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जो मेजर कर रहे थे एक सरफेस को, 5 सरफेसेस हम मेजर कर रहे थे एक टूथ में. ठीक है, 5 सरफेसेस हम मेजर कर रहे थे और हमने स्कोरिंग क्या करनी थी? एक सरफेस की
फॉर एग्जाम्पल आप मीजियल को ले लो, हमने एक सर्फेस की या 0 स्कोर कर सकते थे या हम 1 स्कोर कर सकते थे। 0 मीन्स कि डेब्रिस और फ्लैग प्रेजेंट नहीं है, 1 मीन्स कि प्रेजेंट है। तो आप मैक्सिमम, मैंने आपको इसलिए बताया कि आप मैक्सिमम 1 ले लो। एक टूथ की 5 सर्फेसेस हैं, सबका 1 1 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आपके पास एक टूथ का स्कोर आ गया। आपने जब सब सर्फेसेस को प्लस किया तो एक टूथ का मैक्सिमम स्कोर आपके पास 5 आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। हो सकता है किसी की मीजियल पे 0 डेब्रिस हो, किसी की डिस्टल पे 0 डेब्रिस हो और मिडिल में हो, तो आप इस तरह फिर उसका स्कोर कम भी हो सकता है। मैंने आपको मैक्सिमम की एग्जांपल दी है, मैक्सिमम 5 आ गया स्कोर आपका एक टूथ का। अब आपने एक इंडिविजुअल का चेक करना है। अब इसमें भी डिफरेंट स्कोर्स हो सकते हैं, किसी टूथ का 5 हो सकता है, किसी टूथ का 3 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है। मैं मैक्सिमम से आपको समझा रही हूँ कि फॉर एग्जांपल सारों के 5 स्कोर थे, तो हमने 6 टीथ एग्जामिन किए, 5 इन सब 6 टीथ का 5 स्कोर था, हमने सबको टोटल किया और हमने 6 से डिवाइड कर दिया। इसका मैक्सिमम आप देख लो, अगर 530 बन जाता है टोटल स्कोर, अगर सब 6 के 6 टीथ का 5 है तो 30 बन जाता है। इसको डिवाइडेड बाय आप 6 करोगे फिर 5 निकलेगा। इसी तरह आप कम करोगे तो और कम निकलेगा। अब इसकी रेटिंग आप कैसे करते हो? If the score is 0, it means excellent, there is no debris. If it is from 0.7 to 1.7, it means it comes in good category. If it is 1.8 to 3.4, it means it is fair. And if it is 3.5 to 5, it means the oral hygiene of the person is poor. Anything not clear up till now? फिर हम next index पे जाते हैं। सब क्लियर हो गया है? रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है? Okay, the next is simplified oral hygiene index. It was developed by Green and Vermillion in 1964. The purpose of simplified oral hygiene index was the assessment of oral cleanliness by estimating the tooth surface covered with debris or calculus. अभी पहले तक हम debris और calculus को मेजर करना है। वी हैव 2 कंपोनेंट्स। यहाँ ही हमें पता चल गया कि इस इंडेक्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, वन जो डेब्रिस मेजर करेगा और वन जो कैलकुलस मेजर करेगा। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर माउथ मिरर एंड शेपर्ड्स हुक एक्सप्लोरर। अच्छा, अब आप सबको पता है कि शेपर्ड्स हुक एक्सप्लोरर कौन सा होता है? जो सिंपल प्रोब हम लोग यूज करते हैं उसको हम शेपर्ड्स हुक एक्सप्लोरर बोलते हैं। Simple probe and mouth mirror will be used. The surfaces and teeth to be examined are upper right first molar, उसकी buccal surface, upper right central incisor labial surface, upper left first molar buccal surface, lower left first molar lingual surface, lower left central incisor labial surface and lower right first molar lingual surface. ये almost कंपेयर है पेशेंट हाइजीन परफॉर्मेंस इंडेक्स के ही, कि अपर के सारे बकल और लेबियल सर्फेसेस एग्जामिन हो रही हैं, लोअर में लिंगुअल सर्फेसेस एग्जामिन हो रही हैं, एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल इंसाइजर, उसकी लेबियल सर्फेस यूज हो रही है। As I've already told you that it is the calculus and the simplified debris index which measures the extent of debris. इसको हम एंड में कंबाइन भी कर सकते हैं और सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं।
अब हम इसमें करते क्या है, हम आइडेंटिफिकेशन a full erupted tooth distal to each second premolar is examined. Facial surfaces of maxillary molars and lingual surfaces of mandibular molars are used, may also be used as substitutes when required. Interior teeth में हम क्या करते हैं, facial surfaces of right maxillary central incisors and mandibular left central incisors are used. In case one is missing, opposite central incisors are used and substitution can be made further on. अब इसको पहले आप यहाँ पे समझ लो कि posteriorly हमने कौन से टीथ लेने हैं. फुली इरप्टेड टूथ होना चाहिए और डिस्टल होना चाहिए सेकेंड प्रीमोलर के. इंटीरियर में सेंट्रल इंसाइजेस होने चाहिए अपर और लोअर. अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं. अब इसको ऐसे समझें आप कि इसको हमने 6 सेगमेंट्स में ओरल कैविटी में हमने टीथ को डिवाइड कर दिया. एक सेगमेंट K9 टू K9 है, एक सेगमेंट फर्स्ट प्रीमोलर से थर्ड प्रीमोलर तक है. तो हम एक इंटीरियर अपर हो गया, दो पोस्टीरियर अपर हो गए, एक इंटीरियर लोअर हो गया, दो पोस्टीरियर लोअर हो गए. तो हमारे पास टोटल 6 सेगमेंट्स आ जाएंगे. हमने हर सेगमेंट में से एक टूथ लेना है. इंटीरियर में से वी आर टेकिंग सेंट्रल इंसाइजर, पोस्टीरियर में से वी आर टेकिंग फर्स्ट मोलर्स, अपर में भी लोअर में भी हमने एक सेगमेंट्स में से एक टूथ जरूर लेना है. 6 सेगमेंट्स में हम पूरी ओरल कैविटी को, हम पूरी डेंटेशन को डिवाइड कर रहे हैं. Now, what is the criteria for debris score? No debris or stain present, it means we'll score it as 0. Soft debris covering not more than 1/3 of the tooth surface being examined, or the presence of extrinsic stains without debris regardless of surface area covered. तो हम 1 स्कोर करेंगे. सॉफ्ट डेब्रिस प्रेजेंट है लेकिन इट इज नॉट कवरिंग मोर देन 1/3 surface of the tooth. सेकेंड को हम कब स्कोर करेंगे? when soft debris is present which is covering more than 1/3 but not more than 2/3 of the exposed tooth surface. Number 3 is soft debris covering more than 2/3 of the exposed tooth surface. 0, no debris present. 1, debris present covering 1/3 of the tooth. 2, debris present covering more than 1/3 and less than 2/3 of the tooth. And 3, debris present covering more than 2/3 of the tooth. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. आप ये एक एग्जाम्पल देख लो. 0 means the tooth is clean, there is no debris. 1 means gingival third पे debris present है. 2 means it is covering more than 1/3 of the tooth but not more than 2/3 of the tooth. Whereas 3 means it is covering more than 2/3 of the tooth. So this is the criteria for debris score. Now coming for the criteria of calculus score. मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक डेब्रिस स्कोर का और एक कैलकुलस स्कोर का. 0 means no calculus present. 1 means supragingival calculus covering not more than 1/3 of the exposed tooth surface. 2 means supragingival calculus covering more than 1/3 but not more than 2/3 of the exposed tooth surface, or the presence of individual flecks of subgingival calculus around the cervical portion of the tooth. 0 means calculus नहीं है. 1 means subgingival calculus है which is not covering more than 1/3 of the
tooth. 2 means supragingival calculus is present, which is not covering more than 2/3 of the tooth, but small flecks of calculus are present in the subgingival portion of the tooth. 3 means supragingival calculus covering more than 2/3 of the exposed tooth surface and a continuous heavy band of subgingival calculus around the cervical portion of the tooth. अच्छा, इसमें आप 2 और 3 में कंपेयर देख कर लें कि 2 में फ्लेक्स ऑफ सबजिंजाइवल कैलकुलस थे, कहीं कहीं आपको प्रोब में सेंस होगा कि कैलकुलस प्रेजेंट है. Whereas in 3, a proper band of calculus will be present in subgingival area. बाकी it is comparable to the Debris score. कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? डेब्रिस स्कोर में हमने वैसे ही कैलकुलेट किया, टोटल डेब्रिस स्कोर लिया एक टूथ का, उसको डिवाइडेड बाय द नंबर, हमने सब टीथ के डेब्रिस स्कोर ले लिए. डेब्रिस स्कोर मैक्सिमम एक टीथ का क्या हो सकता है, एक सरफेस हम एग्जामिन कर रहे थे, बकल सरफेस या लिंगुअल सरफेस, हम एक सरफेस एग्जामिन कर रहे थे. मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3 तक जा सकता है, 0 to 3. हमने सब टीथ, जो 6 टीथ हम एग्जामिन कर रहे थे, हमने उनका स्कोर प्लस किया, उसको डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टीथ स्कोर. फॉर एग्जांपल हम 2 स्कोर ले लेते हैं, हमारे पास टोटल डेब्रिस स्कोर 6 टीथ का 12 आया, उसको हमने डिवाइडेड बाय 6 किया तो वो 2 आ गया हमारे पास. डेब्रिस स्कोर हमारे पास 2 आ गया एक इंडिविजुअल का. इसी तरह कैलकुलस स्कोर भी हम 2 ले लेते हैं, एक टीथ का 2 आया, हमने सबको प्लस किया, 12 आ गया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टीथ. 6 टीथ थे, उनको हमने जब प्लस किया तो उसमें भी 2 आ गया. सिंप्लीफाइड ओरल हाइजीन इंडेक्स को हम कैसे मेजर करेंगे, इंडिविजुअली आपको पता चल गया कि आपका डेब्रिस इंडेक्स भी 2 आया है, कैलकुलस इंडेक्स भी 2 आया है. अगर आपने इसको इंडिविजुअली मेजर करना है तो आप इंडिविजुअली कर लेंगे दोनों को. अगर आपने ओरल हाइजीन इंडेक्स मेजर करना है तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, डेब्रिस इंडेक्स प्लस कैलकुलस इंडेक्स, तो आपका ओरल हाइजीन स्कोर आ जाएगा. Compute the average of the individual scores by totaling the scores and dividing the number of individuals. So this was oral hygiene score. आप देख लें कि इसमें कुछ आपको समझ ना आई हो तो मुझे बताएं. Anything not clear in this lecture? This was all for today. मैं रिवाइज करा देती हूँ. हमने पढ़ा व्हाट इज इंडेक्स, first of all we studied what is an index, its definition, the ideal requirements of an index. It should be clear, valid, reliable, quantifiable, sensitive and acceptable. Purposes and uses of an index. Types of index, main 2 types हैं, simple and cumulative, which are further divided into 3 types, irreversible, reversible and composite. Then we studied the selection criteria. After that we studied the classification of oral index. After that, the plaque index, which is used to measure the plaque. After that, the patient hygiene performance index. And then the simplified oral hygiene index. This was all for today. It is a very important chapter. आप लोग सब इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज भी कीजिएगा.
अच्छा, ग्रुप्स का आपको बताया था डॉक्टर बिलाल ने कि जो हमने रिसर्च करनी है उसके लिए ग्रुप्स बनाने हैं। आप लोगों ने मुझे ग्रुप्स बना के लिस्ट भेजनी है, और जो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ग्रुप्स बनाए थे असाइनमेंट के लिए, वैसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मैं आपसे दोबारा करवाऊंगी। जो आप लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं, सब ने बहुत ही नॉर्मल पोस्टर्स बनाए, कोई मेहनत नहीं हुई थी उन पे, वो मैं आपसे दोबारा करवाऊंगी। लेकिन अभी जो ग्रुप्स मुझे चाहिए वो रिसर्च के लिए चाहिए। सो वो सीरियस हो के आप लोग मुझे 4 to 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दें, और जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उमैद से कहिएगा मुझे शेयर कर दे। ठीक है, आज आप लोग बना लें और कल मुझे बता देंगे क्या कौन से ग्रुप्स हैं। एनीथिंग नॉट क्लियर इन द लेक्चर?